What about the college professors? इट्स लाइक आप खेल रहे हो गावा में कि पूरी पिच कटी हुई है, बॉल पड़ के कहाँ जाएगी और डालने वाले को भी नहीं पता है बॉल। तो वैसा हाल है इसमें कि हम बच्चे जाएंगे प्रैक्टिकल में, जो आपने दिखा रहेगा ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये सब करके वो हट जाएंगे, उनका काम हो गया, दे विल देन अगेन सिट बैक। आप टीचर हैं, आपने देखा कि हाँ पेशेंट पेट यहाँ लगाता है, यहाँ ये लगाता है, जब तक आपने अपने हाथ ही गंदे नहीं किया उसको क्या बताओगे आप? आपको यू डोंट डिजर्व योरसेल्फ टू बी देयर। आई बी ऑनेस्ट टू यू, वन शुड बी गिवन अ रोल ऑफ प्रोफेसर अंटिल अनलेस दे हैव एन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। क्योंकि यू नहीं, मैं इट्स वेरी क्लियर बिकॉज सी मैं बताता हूँ, Jobs are not that much safe और multiple people का काम एक ही आदमी कर पा रहा है. इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे बहुत आपको इटरेशंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, लर्निंग चाहिए। आप कोड कर रहे हैं, कोड में 10 एरर आएंगे आपके। Hi everyone, I'm Rahul Gupta. Welcome to the another new IFT podcast. Today we have with us Mr. Harsh Vishwakarma. He is an XR developer and tech leader in the reputed company. And today's episode is specially for the student who are very curious about the AR, VR and XR industry. And we will be diving deep into the real world industry challenges and how student can break into this particular field and from where to start and what kind of a challenges that student can face to enter into the XR to become a XR developer. So if you are wondering how to turn your passion into immersive technology, so you are in the right place. Please watch this particular podcast till the end and subscribe and like and share this particular channel. Hello, Hello sir, yeah, hi. how are you? All good. Nice to be here. Nice to be. So first of all, जो नहीं जानते आपको उनके लिए who is Harsh? So बहुत सी चीज़ सर ने ऑलरेडी कह दिया रहेंगे कि लाइक अबाउट। सो एनीवेज, सो आई एम हर्ष विश्वकर्मा, आई एम एन XR developer. I mainly work in XR space. I work in augmented reality, virtual reality, mixed reality, and extended reality. Yes. So I have worked and working across major industries, Okay. such as aviation, healthcare, Okay. manufacturing, advertisement, experiential advertisement, and all those stuffs. So mainly I'm into that, and I'm into XR space since like past 3 years. And yeah, and before that I was into web development mainly in my early ages of the career comparatively now. Yeah. Okay. And yeah, So totally like how many years you have spent in that? see, so I will break things for you. In XR it's almost 3 years, it will be 3 years right now. And before that, around my SSC and at that time I was working as a web developer. So technically I started myself as a web developer officially. So I used to create websites and all those stuff using PHP, WordPress back then. तो since that time आज तक बहुत से clients भी serve किए. I have served many clients as well in my this mode, in my freelance mode while web development. बाकी तो mainly सर अपना था ही, like once I got into XR and I started with the things up. But मेरा nature से background से था, like before coming into tech as well, जब मैं when I was in my school time as well, I was very much into computers. Technology and computers were something कि जिसके अंदर like I was like it was something part of me. Okay. So when I had computers and laptops at my place, so I used to literally directly dismantle them कि देखो उसके अंदर क्या है, कैसा क्या है. So many times since my you can say inception and specifically in this computer and technology, बहुत सी चीजें की अपन ने, बहुत से machines बिगाड़े हैं in early years. Then slowly I got into the whole setting, and I guess yes. So as you explained, whatever you are doing as a profession, okay, in industry, I'm very curious about that. How you have reached from ground to industry level, from where you have started about XR. So what was the trigger point that you have to enter into the XAR, VR and MR kind of a thing? So what was the first initial thing that triggered to you that you need to go in that particular industry? So as I already gave a lot of about my introduction in starting as well. Yes. But this, if you specifically ask me, like how I got into the XR space, into development and designing.
So specifically back in 2022, you had hosted an internship at a workshop specifically at our premises, at college premises. So that time I got, you can say, more specific awareness, like what is XR, AR VR क्या है, what is augmented reality and what is virtual reality. Yes. क्योंकि सुनते तो पहले से आए थे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, उसके पहले से ही तो थोड़ा सा था कि AR VR अपन बहुत टाइम से सुनते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो वो जानने के लिए इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो थ्रू आउट द पीरियड as we learned about AR VR and we made couple of projects as well out of that. Yes. But उसके बाद में I was like, this is something which has a bright future. Because see, if you see XR from all these perspectives, be it investment FOV, be it any developer's perspective, it is how it goes is कि XR is like how mobile phones were back then. बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट है आज के टाइम पे भी, बट राइट नाउ XR right now is in shaping form. So yes, so I got into that thing, and on my judgment, like ये मेरे seeing this future for me in XR, I got into XR. So I started my internship at Vignesh INC. From that time, right now I'm working as a lead of XR and technology at Vignesh INC and Vignotech Solutions and Private Limited. Yeah. So I'm mainly serving that role right now. And apart from that, whenever I see an opportunity to have some gaining of an experience in XR space, I warm-heartedly welcome that. Okay. So initially, मुझे अभी भी याद है, in that particular ITR training internship and all, we have used Google Cardboard. Yeah. Have you remembered? Now, till now, you have the total around 3 years of experience. So already you have used multiple devices and all. Can you explain what kind of a changes that industry has till that to this particular day? Got it. Okay. So from Google Cardboard to whatever devices that you have started from the Google Cardboard, right? And nowadays you are using Apple Vision Pro and all, etc. So could you explain a little bit that particular? So if you ask me, that's true that we started with Google Cardboard. Those were the headsets back then. We used to put our phones inside and use them. Yes. So see how it works was like when Google Cardboard, we started with the development. We had a basic SDK from Google to start with it, but that was a very manual sort of a process. You got to add you got to yourself add scripts into your game objects and everything. Unity के अंदर थोड़ा technical जा रहा हूँ मैं. Yes. Sorry for that. So that time we used to that was a very manual process, and it was a bit of time consuming. But if anyone asks me tomorrow कि I want to get into XR, I would still recommend to go through that, because Google Cardboard was something where you learn कि what is AR, what exactly is a camera and what is a virtual reality. Before understanding virtual reality, you have to understand what is a camera and how it works. Yes. Getting it? Because virtual reality is like कि आपके पास में दो eyes हैं. So if you see, you are coming into virtual space, आपको दो cameras भी चाहिए. Yeah. Left camera, right camera. Yes. So if you want to understand that process, you have to first start with Google Cardboard to understand कि how camera works. Yes. What is the field of view, what is spectrums and all those technical points. तो सीखने के लिए Cardboard is the best place to start it. But as time progresses, so right now we are like, I have used Oculus की सारी I have used Oculus all devices, starting from Quest 2, Quest Go, Quest Pro, Quest 3, Samsung Odyssey, Okay. HP Reverb G2, then your HTC Vive Pro 2, then Magic Leap HoloLens, and सबसे recent वाला अपना your Apple Vision Pro and Meta Quest 3S. Okay. So thing is, I have worked across all of this over my period, because luckily where I work right now, Vignesh INC, it's a very great place where we have got all these headsets with us. So it was, you can say, a boon and a luxury for me to have exposure to those headsets in my early stage of the career, specifically in XR. So I've seen those headsets very closely from developers' perspective as well, and from your users' perspective as well. So it was an amazing journey. As you explained, so also the next plan is that we are just going to carry the devices in college, okay? For example, Meta Quest 3 and student को हम लोग device देंगे, और we are just going to explain how to make projects using Meta Quest 3 and all. So कैसे एक feedback रहेगा student के side से, what they can do in terms of a project, थोड़ा बहुत बता सकते हो? See, देखिए, first of all, when you have these headsets with you, जब Meta Quest 3 लेंगे, so it is something, it's like your car basically.
you can drive as much and however you like to. तो मेटा क्वेस्ट 3 लेके यू कैन क्रिएट कंटेंट फॉर लाइक स्टार्टिंग मतलब सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे. दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई डिड. सो आप प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल प्रैक्टिस फंडामेंटल्स, फंक्शंस. यू विल अंडरस्टैंड कि आप पहले जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या मेटा, लाइक एक वीआर के अंदर फंक्शंस क्या क्या है. आप एग्जांपल के लिए कोई एसडीके यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग ऑकुलस का एसडीके, इफ यू आर यूजिंग OpenXR SDK, और यू आर यूजिंग MRTK और कोई भी आप SDK यूज कर रहे हैं, so you have to first understand कि what that SDK has to offer you. Yes. See, you want to grab, you want to teleport, you want to poke, you want to interact. सारे आप interactions check कर लेंगे. Yes. So it's like you're now calibrated yourself. Now once you are through with the SDK's offering, it means now you have calibrated yourself with the SDK. कि मुझे भी पता चल चुका कि इसके अंदर क्या क्या है, कि मेरे पिटारे में क्या क्या चीजें हैं. I know that very well now. So I can use wherever I want to. So for example, जैसे कि मैंने एक शूटिंग गेम बना दिया स्टार्टिंग में कि ठीक है क्वेस्ट 3 आ चुका है, आई एम क्रिएटिंग अ शूटिंग गेम. तो क्या करूंगा मैं, आई नो द बेसिक्स ऑफ यूनिटी. क्या करूँ उसके, व्हाट यूनिटी हैज विद इट, यूनिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसकी फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, एंड व्हाट इट हैज. उसके अंदर प्रीफैब्स हैं, अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट्स हैं. तो मैं उसमें से मैं कोई भी 3D ऑब्जेक्ट लूंगा, आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ शूटिंग गेम. तो मैं क्यूब से गन बना दूंगा और मैं स्पीयर यूज करके अपने बॉल बना दूंगा. तो आई कैन मेक दिस गेम इन फॉर क्वेस्ट 3. अब क्वेस्ट 3 बाद एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने डिवाइस के आपको नाम लिए उसको कैटेगराइज करना भूल गया मैं कि कौन सा हेडसेट किसके लिए है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट 3 सेक्टर्स on which I work and what is there and what majorly is into extended reality. So one was augmented reality, virtual reality and mixed reality. तो आपके पास में आज के दिन में augmented reality में you have got AR glasses such as Magic Leap, HoloLens 2, which is now deprecated by Microsoft. Then you have got then in virtual reality you have got Samsung ODC, HP Rev G2, Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest Pro, Varzo XR devices, and many. In mixed reality right now you have got Oculus Quest 3, because Quest 3 has got a pass-through camera as well, which makes you achieve mixed reality. Then you have got Oculus 2, then you have mixed Quest 3 है. Then you have got Ajna का XR है, Indian made XR headset. It's an Indian, and we should be proud of that basically, क्योंकि Indian based एक headset है that is also capable of mixed reality. Correct, Ajna XR. And that's mainly मोटा मोटी यही है. और रोज कुछ ना कुछ आते रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो कंपनीज और स्टार्टअप्स को पावर मिल रहा है टू वर्क ऑन इट, devote time, and you know have a very natural drive to work towards the space. तो आगे आते भी जाएंगे. And coming sir आपका पॉइंट जो था कि so we can create that basic project using Meta Quest 3. So we were on a gun game, जो हम gun game बना रहे थे. तो see एक बार से आपका वो बन जाएगा, so you can deploy that into virtual reality mode, जहाँ पे से पूरा virtual space है. But Meta Quest 3 एक mixed reality headset है, तो आप उस सेम सीन को पास थ्रू लगा के आप उसको मिक्स्ड रियलिटी कर सकते हो. एक स्टेप आगे जाके आप उसको मल्टीप्लेयर कर दोगे कि अगला बंदा मेरे सामने खेल रहा है. सो वी बोथ आर शूटिंग एट सेम टारगेट्स. इसका पॉइंट 10, इसका पॉइंट 12, इसका पॉइंट 15. तो ये आप समझ, तो यू कैन बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्केल योरसेल्फ, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है. So what about the patience level of the student while starting with the Unity? Okay, you also know about the things. Whenever we are going to start with the Unity, they are always in the excitement, but as we start with the installation and all, okay, so you also know the kind of things they are going to feel always while installing and all. So what kind of a patience level are required to working with the or to starting with the Unity 3D or Unreal Engine kind of a software? So first of all, to answer a question in starting sir, ऐसा चीज है कि when students come, जब स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं वर्कशॉप पे कि आज का डेट एक्स डेट है, आज से हम लोग यूनिटी फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द वर्कशॉप. सो इट्स लाइक कि स्टूडेंट्स हैव सीन दिस, लाइक स्टूडेंट्स को लगता है कि वीआर पहन लेंगे इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, एआर करेंगे इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. हम गेम खेलते हैं, वी प्ले पबजी, तो वेयर इट इज मेड इन वन ऑफ द गेम इंजन्स. तो एक फैसिनेटिंग फैक्टर वहां से निकल के आता है. सो दैट इज समथिंग जिससे स्टूडेंट्स एक्साइट हो जाते हैं एंड दे आर लाइक कि चलो इसको ट्राई करते हैं.
So when they start with Unity, it's like, you see, Unity is a very big game engine. It is very expensive. It has got very lot in that. So when they start with Unity ना, तो उसके अंदर you have to do the installations. Then we start with the basic parts कि Unity के अंदर बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, प्रोजेक्ट विंडोज हैं, सीन्स हैं, you have got libraries, आपको उसमें स्क्रिप्टिंग करनी है, आपको उसके अंदर लाइटिंग करनी है, you have to do staging, you have to do integrations, XR integrations. फिर सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है, उसको डिप्लॉय करना है. डिप्लॉय करना है हेडसेट्स पे, स्पेसिफिकली स्टैंड ऑन हेडसेट्स पे. डिप्लॉय करने से पहले एक चीज आती है, टर्म कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज वेरी मच क्रूशियल इन एनी प्रोसेस. ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी मस्ट, क्योंकि आप नेटिवली डायरेक्टली कंटेंट को बना के यू कैन डिप्लॉय, बिकॉज आपका कंटेंट में जो मॉडल्स रहेगा बहुत हैवी रहेगा, उसमें चीजें सारी की सारी रहती हैं. सो स्टूडेंट्स को इसमें इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे बहुत आपको इटरेशंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, लर्निंग चाहिए. आप कोड कर रहे हैं, कोड में 10 एरर आएंगे आपके, और आपको बहुत ज्यादा उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा. बिकॉज बैक देन व्हेन वी हैड स्टार्टेड, उस टाइम पे जीपीटी नहीं था. आज जीपीटी करके एक लग्जरी है, चैट जीपीटी है, ठकाड़ा डाला साला पूरा सॉल्यूशन दे देगा. उस टाइम पहले नहीं था. लेट अस बी ऑनेस्ट, बैक देन वी हैड स्टैक ओवरफ्लो, यूनिटी फोरम था, वी हैड दिस रिसोर्सेज. तो हम वी यूज्ड टू गो ओवर देयर एंड वेट फॉर आवर थिंग्स. उसके अलावा भी हमको थोड़ा एरर को अच्छे से समझना पड़ता था. कि एग्जांपल के लिए एरर आ रहा है IL2 CPP, एरर आ रहा है X, एरर आ रहा है Y, तो एरर का सोर्स क्या है, कहाँ से बन के आ रहा है एरर, ये और ये कौन से फंक्शन का इशू है, क्या मेरी कोई लाइब्रेरी इंटरडिपेंडेंट है, लाइब्रेरी कंफ्लिक्ट कर रही है, मेरा कोई भी ग्रेडल में इशू है, मेरे कुछ बहुत से इसमें कॉम्बिनेशन से कम्युनिकेशंस हैं. सो आपको एज एन डेवलपर यू गॉट टू बी वेरी मच ओपन माइंडेड. पजल सॉल्विंग है पूरा का पूरा. तो ये क्वालिटीज को एक स्टूडेंट्स को लाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि दिस वाज समथिंग नॉट व्हिच वाज इन माय जेनेटिक्स सिंस माय बर्थ. I started into this, बहुत इश्यूज आए स्टार्टिंग में. I was like, क्या कर रहा हूँ मैं, बट इट वाज लाइक कि कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं, ना करने से अच्छा इट इज समथिंग व्हिच आई एम डूइंग एंड इट इज वेल ऑन ट्रैक. तो वो करते 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 डेली यू अचीव समथिंग. आपका एक एरर निकला, आपने डिप्लॉय किया, VR में पहन के देखे, यू स्टार्ट लविंग द प्रोसेस बेसिकली. यू गेट इनटू दिस. इफ यू आस्क मी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मेरा सक्सेसफुल बिल्ड था VR के अंदर, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने फर्स्ट टाइम कंटेंट बना VR के अंदर, डिप्लॉय का टेस्ट किया, दैट वाज समथिंग एल्स. वो ऐसा फील है जो आपको अगले 10 साल 5 साल में आप अपने एक्सपीरियंस में नहीं मिलेगा. आपको सेम फील व्हाट टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम. तो चीजें हैं बेसिकली, इट्स लाइक बीइंग इन द गेम. आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको खेलते रहना है, रिटायर्ड होकर जाने का ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, और एल्स यू विल लैग बिहाइंड. आपको खेलना है, टेस्ट मैच है समझ लीजिए आप इनिशियली, टू अंडरस्टैंड द बॉलर कैसा बॉल डाल रहा है, आपको लाइन देखनी है, उसकी पिच देखनी है कैसी है. भले आप अटैकिंग बैट्समैन है, एक कैच लेगा तक पीछे जाएगा, तो आपको चेक करना है अपने आपको कि यू हैव टू गिव टाइम टू दिस. सिंपल एज दैट, पेशेंस एंड ट्रस्ट. आपको देना लॉन्ग रन में, यू आर गुड टू गो, दैट शुड बी द जॉब. सो जैसे आपने अभी GPT के बारे में बताया, चैट GPT एंड ऑल, बहुत सारा रूमर्स भी चल रहा है, रूमर और यू कैन से द रियलिटी आल्सो, कि जॉब्स आर नॉट दैट मच सेफ, और इनिशियली व्हाट वी कैन से दैट कि मल्टीपल पीपल का काम एक ही आदमी कर पा रहा है. बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या सोचता हूँ कि ये यूनिटी, AR VR, ये जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. तो इसमें चैट GPT भी उतना हेल्पफुल नहीं होता है whenever you are going to see the things about design perspective or along with the development perspective. तो what I feels कि चैट GPT उतना कवर नहीं कर पाएगा यूनिटी, अनरियल इंजन, जहाँ पे डिजाइन एंड डेवलपमेंट दोनों कवर होता है. तो व्हाट इज एज अ डेवलपर, जैसे आपने 3 साल स्पेंड किए हैं, कैसे लगता है लाइक AI पर्सपेक्टिव से जॉब कितना सेफ है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और XR डेवलपर का? इसमें सर देखो चीजें कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू से XR, उसका टर्म क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी. तो मतलब है कि एक्सटेंडेड है, कोई लिमिट नहीं इसके अंदर. तो इट्स लाइक कि इफ यू सी डेवलपमेंट में एक्सटेंडेड XR के अंदर यू हैव गॉट डिजाइनिंग, यू हैव गॉट डेवलपमेंट, यू हैव गॉट मेनी थिंग्स. सो इसके अंदर AI का इन्फ्लुएंस ऐसा कुछ रहेगा कि अब देख लो यूनिटी के अंदर आपके उसमें भी बहुत सी चीजें हैं. लेवल डिजाइनिंग पार्ट है, लाइटिंग एक पार्ट है, आपको स्टेजिंग करना एक पार्ट है, कोड लिखना आपको पार्ट है, यू राइट मोड बिहेवियर, स्क्रिप्ट लिखते हैं आप सारे के सारे, यू डू ऑप्टिमाइजेशन, यू डू बिल्ड्स, आप बिल्ड परफॉर्म करते हैं. ये सारी इसमें बहुत चीजें हैं. तो आई इवन अग्री कि AI एक पॉइंट तक इट विल ऑटोमेट टास्क. जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग में आज के टाइम पे इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय करंट बैलेंस, सो आई कैन इजीली से आज के टाइम पे आई यूज GPT, ऑलमोस्ट आई यूज दिस जनरेटिव AI टूल्स ऑलमोस्ट 70 to 80%.
बिकॉज मैं नहीं बैठ के बस कोड लिखूंगा जो मैं आज से 1 साल पहले लिखा था, या फिर अगर मैं कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है, आई विल गेट द लॉजिक। सी इफ आई नो मुझे क्या करना है, इफ आई नो कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं, या तो मैं जाऊंगा इंदौर होते हुए घूम के जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ से गुजरात पकड़ के निकल जाऊंगा। इफ आई नो माई गोल, इफ आई नो माई प्रोसेस, अगर मैं इस चीज को कोई भी जनरेटिव एआई टूल को दूंगा लाइक जीपीटी, सो इट विल वेरी नाइसली क्यूरेट मी रिस्पॉन्स, अच्छे से कोड लिख के देगा, सब चीज करके देगा। सो इफ वंस यू बिकम डिक्टेटर टू दिस एआई टूल्स, इट बिकम्स अलादीन फॉर यू। इसका पूरा सीनियर ऐसा है, बट इट इज लाइक कि आपको समझना पड़ेगा कि जीपीटी ने अगर आपको कोड दिया तो आप समझ लो। रीजन बिंग की प्रोडक्शन में सबको बोलता हूँ जो मेरे साथ काम करता है, लाइक एवरीवन, इवन टू माई सेल्फ एंड एवरीवन, कि जीपीटी का कोड जो आता है दैट वर्क्स, इट डज योर जॉब, बट आपको देखना है कि जो कोड दिया एटलीस्ट यू जस्ट गेट इट फैमिलियराइज्ड, आप समझ लो कोड को। कि रीजन बिंग की प्रोडक्शन के अंदर अगर किसी ने कल बोल दिया कि नहीं वी वांट टू चेंज दिस, वी वांट टू ऐड अ कस्टम फंक्शन एंड वी वांट टू डिराइव फ्रॉम दैट, अगर किसी ने आपको रिक्वायरमेंट दी थी, मैं आके अगर इफ आई एम योर लीड, और अगर मेरा कोई लीड है, इफ समथिंग लाइक दैट, और इवन कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, सडनली चेंज आ चुका फंक्शनल वाइज, देन यू गॉट टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन दैट कोड कि यहाँ से मॉडिफाई करूंगा तो मेरा ये चीज हो जाएगी करके, अनटिल एंड अनलेस इट्स जस्ट पैचिंग वर्क, बाकी तो इट्स ऑल गुड। तो जीपीटी का इन्फ्लुएंस रहेगा, बट इट इज नॉट कि वो पूरा खत्म कर देगा। इट्स लाइक कि हाँ, आई इवन एग्री कि जनरेटिव एआई टूल्स डे बाय डे और आर कॉन्शियस, दे आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। जितने भी नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, ग्रॉक एआई आ रही है, जीपीटी का लेटेस्ट मॉडल्स आ चुके हैं, डीप रिसर्च आ चुके हैं, उसके अंदर क्लाउड आ रहा है, डीप रिसर्च के मॉडल्स आ रहे हैं। एआई जैसे 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 जेन एआई के मॉडल्स बढ़ते जाएंगे, डाइवर्सिटी आ जाएगी स्पेस के अंदर, बेटर रिस्पॉन्स आते जाएंगे, एंड इट्स लाइक कि आपका काम हल्का हो जाएगा। कि एक काम करने के लिए जहाँ आपको 5 लोग लगते थे इन एक्स्ट्रा स्पेस, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दिस, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 लोग लेंगे, 1 लोग लेंगे, क्योंकि वो जो एंट्री लेवल का काम है ना, वो आपके लिए जीपीटी कर सकता है। बिकॉज आज के टाइम पे people are utilizing this AI models to generate a script, a sequence basically, कि जिसके थ्रू आप उसको अपने यूनिटी में you add into your यूनिटी पार्ट, आपके बहुत ही चीज ऑटोमेट कर देगा। सो वाया दैट ऑटोमेशन प्रोसेस ना, आपका बहुत सारा काम जो बिगिनर लेवल का था, दैट विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो अब से अगर कोई डर रहा है कि भाई जीपीटी जॉब खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जीपीटी इज लाइक अ टूल। जब तक आप जीपीटी को टूल की तरह लेंगे, एज योर पार्टनर लेंगे, टिल देन इट्स गुड। यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर कि जीपीटी से हमेशा आपको एक ऊपर चलते रहना है। यू हैव टू ऑलवेज नो दैट बैरियर कि जीपीटी इतना करेगा, ये इतना करेगा। सो वंस यू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड ना कि जीपीटी का फाउंडेशंस ये हैं, बट एज एन ह्यूमन इंटरफेरेंस मेरा ये गोल है, बिकॉज जीपीटी सब कुछ अपना नहीं कर देगा, इट रिक्वायर्स ह्यूमन वैलिडेशन। जब आपको मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया कि मैं जीपीटी को 80% यूज करता हूँ, दैट मीन्स कि मेरे को उसको रिपीटेटिवली चीजें बोलनी पड़ती है, तो ये गलत किया, मुझे ये करके दे, ये करके दे, फंक्शन को ऐसा दे, ऐसा दे, ऐसा दे, देन इट कम्स टू अ पॉइंट। सो इसके लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए रहेगा, एंड इट्स लाइक यू हैव टू ऑलवेज लर्न, simple as that, and just keep yourself updated with the community. But if you going to see this particular thing as the like economic wise, एक बंदे का 4-5 बंदे का काम खाली एक बंदा कर देता है यूजिंग जीपीटी, सो वो तो एक नेगेटिव पॉइंट है ना फॉर आवर कंट्री। See, yes, see, if you see this, if you see that way, तो ठीक। See, it's like कि as an individual आप मेरे से पूछेंगे as a general individual, because I am a person, I have a progressive mindset, कि मेरा ये नहीं कि ये कल गाड़ी आ गई, चलो ये मेरे को बैठे बैठे घर मेरे को छोड़ देगी, कुछ नहीं करना, जाके सो जाना अंदर, मस्त मेरे अपने घर पहुंचाऊं, तो वो सीक्वेंस नहीं है। इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जीपीटी भी किसने लाया, इंसान ने लाया, और जीपीटी को बनाया किस तरीके से किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ जीपीटी वर्क्स। जीपीटी वर्क्स ऑन प्रीट्रेन्ड मॉडल, प्रीट्रेन्ड डेटा। अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो, इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग न्यू, जीपीटी आपके लिए वैसे भी यूजफुल नहीं रहेगा उस केस में, बिकॉज आपको कस्टम इम्प्लीमेंटेशन, यू हैव टू डू सम कस्टम इम्प्लीमेंटेशन इनटू दैट। बिकॉज इफ यू आस्क मी, एक्सआर बहुत बड़ा चीज है। एक्सआर में आप जब तक आप क्लाइंट सर्व कर रहे हो, टिल देन इट्स गुड, इट्स गुड वर्क, आप कोई कहीं नहीं फंसने वाले हो। बट वंस यू स्टार्ट इनटू प्रोडक्शन लेवल, जब आप पिक्चर के इस तरफ आ चुके हैं, व्हेन यू बिकम द प्रोड्यूसर, जैसे कि आपका एक प्लगइन है ओकुलस एसडीके का, एसडीके किसी ने बनाया हुआ है, आप उसके इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं। वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट प्लगइन्स एंड यूटिलिटीज ना, उस टाइम पे पूरा पिक्चर आएगी, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट कोड एज पर दैट, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर द क्रिएटर। उस टाइम आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उस टाइम आप यू आर लिटरली राइटिंग योर ओन प्लगइन एंड एसडीकेस फॉर people to use. तो in that case GPT won't be that useful. अगर आप उस व्यू में जाएंगे तो it's perfectly, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। It's like it's good to, it's a good space comparatively. Yes. No issues. So our next question is that you also know like all the colleges have some of the rules and regulation that students should do internship, students should do
like some of the training, okay, from outside, or already student have lots of assignments and all, okay. So but at the end of the result, okay, around 1.5 million people pass out हो रहे हैं 15 लाख के अराउंड, और उसमें से व्हाट वी कैन से अराउंड 40,000 को ही जॉब मिल रहा है. सो व्हाट स्टूडेंट शुड डू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए so that they can able to enter into the industry? I'm not asking about only AR, VR or MR kind of a things, but at least you can explain from your perspective what students should do along with their engineering, so that they can able to get into more technical things and in the industry can easily hire to them. Industry ready basically. See, if you ask me, so इसका आंसर ऐसा है कि जो अपना करंट सिस्टम है, जो अपना करंट एजुकेशन सिस्टम है, it's not made to create productive employees, or you can say effective employees. जब से आप भी डिग्री के हम सब करते आए, we know that very well कि it's about assignments. सुबह कॉलेज आए, लेक्चर किए, घर जाओ, असाइनमेंट लिखो, जर्नल भरो, सेमेस्टर के एंड तक आपको जाना है, अपना थ्योरी आपको सब प्रैक्टिकल देके सब रफा दफा करना है, साइन लेके क्लोज करना है, एंड यू हैव टू जस्ट सिट फॉर द एग्जाम्स. तो इस प्रोसेस को जब आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी इंडस्ट्री फोकस है ही नहीं. अब आज भी आदमी को यूर टीचिंग सब्जेक्ट्स व्हिच आर 20 years बैक, और बहुत वास्ट चीजें, मतलब आप यू आर एक्सपेक्टिंग योर स्टूडेंट्स टू बी रेडी फॉर 2030 एंड यू आर टीचिंग कंटेंट ऑफ 2000 1990s का. तो यू कांट इवन एक्सपेक्ट दैट इन योर ड्रीम्स एज योर करिकुलम डिजाइनर. अब कोई भी यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, इट डजंट मैटर. इट्स अबाउट how well your course is structured for making your students ready for the industry. Because long run में that what it is. If you ask me anyone degree करना है, भाई मैं तो डिग्री, अगर see degree is good, it's like your way to your gate, आपको गेट लगा के छोड़ देगा, but उसके आगे it's about you, it's about your skills. So if you ask me, see, अगर कोई जाना चाहता है, कोई भी स्ट्रीम का रहना हो, लीव XR कोई भी स्ट्रीम का रहेगा ना, it's like कि once you got familiar, जिस दिन आपको रियलाइज हो चुका है कि भाई मुझे चीज करनी है, आई वांट टू बिकम एन AI डेवलपर, आई वांट टू बिकम एन वेब डेवलपर, आई वांट टू बिकम एन XR डेवलपर. सो स्टार्ट फाइंडिंग द मैप, क्रिएट अ होल मैप, एक पिक्चर सेट करो पूरा का पूरा कि ये है मेरा, आई एम स्टार्टिंग वो है, आई वांट टू गो हियर. सो जस्ट क्रिएट अ मैप and see what it takes to reach over there. You will need to learn, you will need to practice, you will have to look for opportunities. Of course you will start yourself as an intern. तो आपको कॉलेज खत्म करना है, you have to come back to your home, start researching, रिसर्च किया, आपने अपना प्रोग्राम डिजाइन किया, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मेरा कि अगर आपने 3 दिन भी अगर आपने सिर्फ सीखा है ना, तो 1 दिन उसका प्रैक्टिस कर लो आप. हो सकता है कि जितना आपने 3 दिन में सीखा है उसका प्रैक्टिस 10% होगा. द गुड पार्ट इज कि 10% हुआ है, 0 से आपने 10% किए हुए हैं. तो अगर आप ये भी फॉलो करेंगे प्रोसेस अपने थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल, इट्स अ वेरी ग्रेट वन. इसको फॉलो करके यू कैन रीच योर 100%. यू कैन बी एट दैट प्लेस वेर यू डिसाइड टू बी. तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है, बिकॉज कॉलेज इज समथिंग इज नॉट गोना हेल्प यू. College can help you to get that A4 size color print degree, which you can have at your home and it will look nice on your walls. But अपने आप को, if you want to place yourself in the industry as a working professional, you got to go through this, because आज के टाइम पे we are not in that space. 2010 का टाइम when India was just getting into IT, तब बहुत सारी ओपनिंग्स थी. उस टाइम पे डिमांड बहुत था, सप्लाई कम थी. आज इसका वर्स हो चुका है. वर्ड्स का वर्स हो चुका है, क्योंकि आईटी में आज के टाइम पे, सॉरी टू यूज गलत वर्ड, कचरे की तरह हो गया, कचरे की तरह, डस्टबिन, प्योर डस्टबिन. बिकॉज जॉब 4 है, अप्लाई करने वाले 400 हैं. सो इट्स लाइक वेयर यू विल कॉम्पीट योरसेल्फ. आप कहाँ अपने को खड़ा करते हो? यू गॉट टू रैंक योरसेल्फ इन टॉप 5, टॉप 4. देन व्हेन यू हैव द प्रिविलेज टू हैव दैट, हाउ यू विल कम टू दैट पॉइंट इज गेटिंग वेरियस एक्सपीरियंसेस. बिकॉज आज भी मेरे को पता कि कल क्या होगा, इट्स वेरी क्लियरिटी कि कल क्या होगा, कल जो भी हो, लेकिन अपने इन पे एक बेस लेके चलना है कि इसके नीचे कुछ नहीं होगा. कल कुछ भी वर्ष हो, इससे नीचे तो कुछ नहीं आने वाला. दैट्स 100% श्योर इफ आई एम रेडी विद माय एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू कीप, आपको फुल टाइम काम करना, आपको फ्रीलांसिंग करते रहनी है, आपको वर्क गेन करना है. बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आपको कंपनी बाहर, आप व्हेन यू विल लीव अ कंपनी, आप वहां से जब बाहर आएंगे तो आपको ये देखा जाए कि अपने लाइफ में अब तक आपका एक्सपीरियंस क्या क्या रहा. सो इफ यू हैव गुड प्रोजेक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो, आपने चीजें सीखी हुई हैं, यू आर दैट प्लेयर कि जिसको हम कुछ भी दे दें वो कर लेगा. बिकॉज मैं 3 साल के अंदर मेरी कंपनी में जब मैं काम किया हूँ, आई वाज नॉट ओनली वर्किंग एज एन एक्स्ट्रा डेवलपर, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू.
मुझे लग रहा है मैंने 2 साल ही सिर्फ टेक्निकली एक्सेल पे काम किया, 1 साल मैंने पाइथन, लाइक आई हैड वर्कड ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स, आई हैड इवन वर्कड ऑन पाइथन का एक प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली किया था, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट था, एम्बेडेड सिस्टम्स का प्रोजेक्ट था, वेयरइन वी हैड मेड एन इक्विपमेंट, एविएशन इक्विपमेंट बना था हमने जो कि जर्मन कंपनीज बनाती हैं, सो वी हैड मेड दैट प्रोजेक्ट, जबकि पाइथन समथिंग नॉट व्हाट आई डू डेली। पाइथन ये था कि जो मैंने बहुत पहले सीखा था बेसिक्स, कि पाइथन ऐसे काम करता है, उसके कॉन्सेप्ट्स ये सब है, फंक्शंस ये हैं, टपल्स हैं, एक बेसिक व्हाट इज पाइथन, आई न्यू दैट, सो उसको लेके वी हैड मेड दिस प्रोजेक्ट विद हेल्प ऑफ जेएनएआई। इसमें जीपीटी लगा था, बट इट वाज अबाउट गेटिंग दैट थिंग मेड अंडर कंट्रोल, कि अगर कल मेरे को बोलता है कि इसमें ये निकाल के डाल दे, दैट इज अंडर माय कंट्रोल, आई कैन डू दैट फॉर यू। So it's like that. You got to be you got to be diverse and hybrid. Basically, that's how you should be. And that's, yeah. That's, I hope it answers. The next is very important question. Okay, for as like by the help of technology, everything is changing. Correct? You can also agree with that. But I just want some genuine answer from your side. What about the college professors? What kind of a things they need to use so that they can more help to the industry based thing for the student, or what kind of a things they can do so the student can more involve with the industry kind of a things. Okay, so what is your genuine or positive response to it? We are not targeting any of the colleges from where you are passing out and all, but as like multiple colleges are there, so what will be the most generous answer about the professors and all, what they can do? Now, what I'm about to say is very much a clear fact as per me. कि if I had to rule this education ecosystem, this was my policy. कि प्रोफेसर सबसे पहले जो बनना वही चाहिए who has industry experience. First of all, no one should be appointed as professor, be it associate professor, visiting professor, nothing. No one should be given a role of professor until unless they have an industrial experience. क्योंकि नहीं मैं it's very clear because see मैं बताता हूँ, see there may be possibility this podcast will be listened by all the like education minister and all, so it's a need because you cannot, it's like कि अगर आप मैकेनिक हो, आप एक मैकेनिक को आप जाके बोलो, आप समझे मेरे को मैकेनिक, आई वांट टू लर्न कि कैसे गाड़ी खोलते हैं, कैसे चीजें होती हैं, इसका क्लच प्लेट कहाँ से मैं बाहर निकालूंगा, इसका पिस्टन प्लेट कहाँ है, आप टीचर हैं, आपने देखा कि हाँ पिस्टन प्लेट यहाँ लगाता है, यहाँ ये लगाता है, जब तक आपने अपने हाथ ही गंदे नहीं किया उसको क्या बताओगे, आपको you don't deserve yourself to be there, I'll be honest to you, जब तक आपने अपने हाथ गंदे नहीं किए जाके you cannot। अगर बताइए मुझे अपने महाभारत की लड़ाई में जो आपके थे, उनका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था उनका, सॉरी, पांडव, हाँ, तो जब अर्जुन जी, तो जब उनको सिखाया गया था उनके द्रोणाचार्य द्वारा, तो वो खुद एक बहुत बड़े होता थे, तब जाके अर्जुन बना था। अर्जुन तब बने थे जब उनको ऐसा गाइड मिला था, who knew very well कि क्या चल रहा है आज के टाइम, like he was a pioneer, बोलते ना, expert of the game। So at least उतना नहीं, आपको वो तो कंपैरिजन के बाहर कीजिए, एटलीस्ट आज के प्रोफेसर्स को अगर कोई पढ़ाने जा रहा है कि what is mechanical, what is AI, what is AR VR, they must have at least some industry experience कि जिस बेसिस पे आप अपने बच्चों को समझ पाएंगे। Because बुक लेके आके पीपीटी दिखा के you cannot, that's something you are basically misleading your student। अब उनको सपने दिखा रहे हो जॉब करने, आपने कभी खुद जॉब किया है क्या? आप बोल रहे हो जॉब करो, जाके आपने खुद जॉब किया है? आपने खाली पास आउट किए, अगर आपने किए then it's well and good, because it has to be very much practical कि आप खाली FDP देके टीचर्स को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। हर एक टीचर को they must have some experience into that, there should be incursion of industry kind of thing। जब तक एक टीचर ने ऐप बनाए तो how can you expect them to teach students creating app? आप अगर आप मुझे सिखा रहे हैं तो I am expecting कि आपने मुझसे ज़्यादा ऐप बनाए हुए हैं, that's what I feel। और आज के टाइम पे thanks to our education system, उन लोगों को आज के टाइम पे हमारी एजुकेशन सिस्टम बोलती है इंडस्ट्री एक्सपर्ट सो कॉल्ड, जबकि ये चीजें पहले से आनी चाहिए कि जो डे वन से पढ़ा रहा है दे मस्ट बी हैविंग सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कि हाँ सी मैंने मेरे टाइम पे सब ऐप बना चुका हूँ, दिस वाज ऑल आई वेंट थ्रू, this was my learning, this was my mistake, then only you can convey this whole thing to your whole batch which is sitting right in front of you। Without that it's useless, it is just talks। हम बच्चे जाएंगे प्रैक्टिकल में, जो आपने दिखा रहेगा ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये सब करके वो हट जाएंगे, उनका काम हो गया, they will then again sit back।
तो एक थोड़ा मुझे बस यही है मुझे कि खाली प्रोफेसर जो भी रहेंगे दे शुड बी एटलीस्ट हैविंग सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। जैसे आपको मैंने मैकेनिक एग्जांपल दिया, कोई भी स्ट्रीम का रहते कोई भी एक्सआर का भी रहेगा, इफ आई एम अबाउट बी प्रोफेसर, अगर मैंने काम नहीं किया तो आई डोंट डिजर्व टू बी प्रोफेसर। मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मैंने एरर्स देखा हूं मेरे आंखों के सामने, मैंने बग्स देखा हूं, मेरे को पता काम कैसे करता है, आई हैव सीन दैट, सो देन ओनली आई विल बी एबल टू कन्वे द एग्जैक्ट ग्रेविटी की कैसे डेवलपमेंट चीजें होती हैं। सो दैट्स इट। आई मीन इफ इतना अगर हमने कर दिया ना, it is going to be a big change. The level of professor should be increased by the help of their experience and all in terms of the industry oriented things. That will be more specific thing towards the student. That's a need. You can also experience this particular thing कि student जब pass out होते तो बहुत tense रहते हैं, बहुत मतलब most of the engineering student एकदम tense रहते हैं जिनको job वगैरह नहीं मिलता है। तो जनरली ये चीज होती किस लिए है? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे तो एक ऐसे क्विट पढ़ा था कि स्ट्रेस डजंट कम फ्रॉम वर्किंग, इट्स कम फ्रॉम नॉट वर्किंग काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आपने जो लास्ट में सर कहा वो दैट इज नॉट रॉन्ग, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ फैक्ट। सर देखिए मेनली चीज है ना कि वो फैक्टर कब आएगा जब आपने कॉलेज में कुछ नहीं किया। अगर आपको करके स्ट्रेस आ रहा है तो यू डोंट डिजर्व दैट स्ट्रेस। या तो आपने करके छोड़ दिया या फिर आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया। बट इन मेजॉरिटी केस क्या होता है, फॉर द मेजॉरिटी जिनको स्ट्रेस ये सब आ रहा है उन्होंने कुछ नहीं किया 4 साल, सिर्फ टाइम पास किया रहेगा। तो उन्होंने खाली घूमे रहेंगे, नाम भर के अपने लेक्चर्स बंक किए, सब चीजें क्यों, दैट्स नॉर्मल। बट आपने कोई स्किल गेन नहीं किया 4 साल के अंदर। इम्पोर्टेंट ये है कि पास टाइम पे कंपनीज को आने वाले टाइम में जितनी भी, क्योंकि आज इन कमिंग टाइम्स यू गोना सी मोर स्टार्टअप्स, क्योंकि इंडिया इज राइट नाउ कमिंग इनटू दैट इमर्जिंग रेंज। इमर्जिंग रेंज में जब आप आ रहे, सॉरी इमर्जिंग एरा, तो इसके अंदर बहुत से स्टार्टअप्स आने वाले हैं। स्टार्टअप्स में ऐसा है कि दे आर नॉट कंसर्न विद द डिग्री कि आपको 9 पॉइंटर मिला, आपको 10 पॉइंटर, आपको 50 पॉइंटर मिला हुआ है, आप यहाँ के स्टार थे, आप यहाँ के सीआर थे, आपका फुल माला, ऐसा कुछ नहीं। उनको है कि यू नो हाउ टू राइट ए बेस्ट, कम राइट ए, they gonna be most specific to your skills कि अगर आपको skills हैं तो they will definitely entertain you। वरना they have people out of there, बहुत से पेपर्स डिग्री लेके खड़े हैं, but doesn't matter for them। if you have skills then you gonna place yourself anywhere। तो मोटा मोटी skills आप gain कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। and speaking skills out of and most of the thing if every engineers are working in the college itself, तो आपने ये भी सुना होगा कि जब हम पास आउट होके किसी आईटी इंडस्ट्री में लगते हैं तो मोर देन 50-60% इंजीनियर ऐसे होते हैं कि आईटी में बहुत सारा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। तो वो प्रेशर वो इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनको वहां पे वो रियल टाइम डेवलपमेंट की स्किल नहीं होती है और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाते। ओके, सो दैट आल्सो लाइक रिलेट विद द थिंग्स। देखेंगे तो देखिए आईटी में प्रेशर तो है, आई एग्री ऑन दैट। इफ यू आस्क मी इंडिविजुअल लेवल पे दूसरे का छोड़िए, प्रेशर तो है, ठीक है ना। रीजन बीइंग कि स्पेशली इन स्टार्टअप जहाँ पे यू आर दी फ्रंट लीड, आप सब काम कर रहे हैं खुद से ही। बिकॉज आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने ऐसे भी टाइम क्या हूँ, बहुत रिसेंटली भी क्या हूँ कि मैंने लाइक बीइंग द कंपनीज डेवलपर, लीड डेवलपर, आई हैव वेंट टू द क्लाइंट, उनसे रिक्वायरमेंट समझाऊं, रिक्वायरमेंट लेके आया, हमने कोटेशन प्रिपेयर किया है, कोटेशन सेंड किया है, काम लेके काम करके दिया हुआ है, फिर पोस्ट सर्विस भी किया हुआ है। तो ये भी चीज मैंने सिंगल हैंडेडली किया हुआ हूँ, इवन बीइंग अ डेवलपर। तो उसमें कम्युनिकेशन भी टेस्ट हुआ, ये भी टेस्ट हो चुका है। अब जब आप कुछ चीजें ऐसी करते हैं जिसके लिए बने नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट पुटिंग द प्रेशर। इसके अलावा आईटी में कैसा है ना कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स कभी भी कुछ भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट डजंट हैव दैट टेक्निकल क्लैरिटी कि उसको तो चाहिए कि यहाँ से चांद तक की सीढ़ी बना दो, आई बी ऑनेस्ट टू यू। तो आपको उनको समझना पड़ेगा कि देखो ऐसा ऐसी चीजें हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स, टेक्निकल की क्या बाउंडेशंस हैं, क्या लिमिट्स हैं, और क्या बेसिकली वर्कफ्लो क्या है, इकोसिस्टम क्या है। वंस यू मेक योर क्लाइंट फैमिलियर विद दैट, इट्स वेरी इजी टू गो। एंड आईटी प्रेशर है बिकॉज यू डू सम टाइम टास्क व्हिच यू हैव नेवर सीन। और मेरे से पूछेंगे, मैंने खुद 12 घंटे काम कर चुका हूँ। सो जब आप ऐसे काम कर रहे हैं ना, व्हेन यू आर गिविंग योर होल डे, सो आपको सोचना नहीं प्रेशर यार में क्या, क्योंकि यू ऐसा हुआ ना आपको कुछ टाइम में, इट बिकम्स ड्यूटी, इट बिकम्स अ नेचुरल टाइम टेबल। आप मेरे से पूछेंगे तो अभी भी मेरा वही शेड्यूल है, क्योंकि मैं अगर मेरे कंपनी का काम भी कर दूँ 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे, अब 6 घंटे 5 घंटे 4-6 घंटे सो लेंगे, अब 4-5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे सोएंगे बहुत मुश्किल से। फिर आप घर जाएंगे, मैं बताऊँ फिर मैं कुछ और में लग जाऊंगा, कुछ और कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा टाइम पे क्या होता है ना कि व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट, आप किसको भी टाइम नहीं दे सकते, यू डोंट स्पेयर टाइम टू एनीवन।
You yourself focus on lot of things, grind करते हो, then you start upscaling yourself. That's how mainly it is. तो pressure is वो तो part of the game. उसको आप as a pressure लो, as a opportunity लो. It's up to you, and it's good. It is something which one has to experience. तो मजा आएगा उस चीज का. And from your perspective, like from where students should start, like it is better to go in MNC initially, or we can start with the startup itself. ये बहुत जगह क्वेश्चन आपसे, तो मतलब अभी तो हर जगह देता हूँ, हर जगह क्वेश्चन पढ़ता हूँ, रेडिट पढ़ लिया, लिंक्डइन खोल लिया, सबका एक बाजार खुल चुका है कि भैया एमएनसी करना है कि स्टार्टअप करना है. सर देखो इसका ऐसा है कि मेरे से पूछेंगे तो सी हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर ये ऑप्शन कभी रहेगा नहीं. पर आपको चाहिए कि 4-5 साल के अंदर मेरे को है कि बस आराम से थोड़ा स्लो स्टार्ट मिल जाए, धीरे धीरे करके मैं चीजें सीख के एक पॉइंट तक आऊंगा, थोड़ा सा समझता है, थोड़ा मास में काम करूंगा, तो आपके लिए एमएनसी है. लेकिन एमएनसी में आपको ऐसा नहीं है, ले ऑफ हो गया ना, आपके अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो घूमते रहेंगे बाकी टाइम. बट यू वांट कि 5-7 साल बाद, आफ्टर 5 to 7 years, आई वांट टू एस्टेब्लिश अ फाउंडेशन कि दैट बिकम्स माय रिजिड बेस, कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है. आई हैव गिवन माय हार्ड वर्क एंड माय टोटल पैशन टू अचीव दैट पॉइंट, कि साला इसके नीचे कुछ भी नहीं है. मतलब आई हैव सीन द बॉटम. अगर आपको वो चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्टार्टअप, बिकॉज जब तक आप ग्राइंड नहीं होंगे ना, खून मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब तक आप मेंटली ग्राइंड नहीं होंगे तब तक तो ये आप पॉइंट अचीव नहीं कर पाएंगे. सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट दैट थिंग. अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर चाहिए, यू वांट टू फील कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, अगर आपको रोबस्ट एकदम फास्ट मूविंग पेस में काम करना, तो स्टार्टअप से अच्छा कुछ नहीं है. जहाँ आप कम हो सकता है, हाई पे है, लो पे में आप घिसेंगे, बहुत अच्छे से घिसेंगे, यू विल लर्न अ लॉट. व्हाट यू विल लर्न इन 5 years एट एन एमएनसी. बिकॉज जब यूजुअली स्टार्टअप्स में क्या होता है, बिकॉज वेयर आई वन वर्क इज ऑल्सो इन स्टार्टअप. हम स्टार्टअप से आते हुए अपनी आज भले हमने आज टीम स्केल की, बट हाउ इट स्टार्टेड वाज लाइक दिस. मैन पावर कम है, काम ज्यादा है, घंटे भी 8 ही घंटे होते हैं, बट इट्स लाइक इट स्ट्रेचेस. ड्यूटी 8 घंटे की, बट आई यूज्ड टू इवन डिवोट 10 hours 9 hours डेली. 9 का 7 को या 8 का हो गया. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो इट इज समथिंग कि इट्स अप टू यू. तो इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो अभी आपको एमएनसी करना, स्टार्टअप करना है, उसका तो उनके हाथ में ऑप्शन नहीं हो, तो इट्स एन ऑप्शन टू देम. Yes. So I also got the answer from n number of people, like startup is the best thing to start the things. Okay, because they are going to learn the multiple things at a time. So as a technical person, as a developer, if you are going to work somewhere, then startup is the good thing, right? इट इज इंडीड, बिकॉज स्टार्टअप में क्या होगा ना कि आप सो के आ जाए, उठ के आपको पता नहीं कि झटके में क्या निकल के आने वाला आज के दिन में. इट्स अ प्रॉपर सरप्राइजिंग फैक्टर. इट्स लाइक आप खेल रहे हो गावा में कि पूरी पिच कटी हुई है, बॉल पड़ के कहाँ जाएगी और डालने वाले को भी नहीं पता है बॉल. तो वैसा हाल है इसमें कि कभी भी कुछ भी उठ के आ जाएगा. बिकॉज सी स्टार्टअप मूवमेंट में बहुत, इन स्टार्टअप स्पेस थिंग्स आर वेरी मच फास्ट. जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उसकी स्पीड से आती है स्टार्टअप में चीजें ऑलमोस्ट. So let's involve bit of in the technical point. Okay, for example, this game development, augmented reality, virtual reality, mixed reality, extended reality, metaverse. All these are the related with one another, right? So if you are going to see all this thing, all this technology with respect to the market analysis, okay, so what is like your projection, how it will be in next 5 years? See, as you shared, ki this technologies, game development, AI, XR, and all these are common. Like these are interlinked terminologies. Okay. So yeah, because सबका source एक ही है. All of these technologies come from a single source. That's game engines mainly. Game engines में Unity, Unreal, Godot, all these are the same source. And next part of your question is कि क्या future रहेगा आज से 5 साल 10 साल बाद? So see, it's like कि the future, what you're going to have in the future is XR plus AI. If you ask me, it's going to be extended reality plus artificial intelligence. The reason being कि specifically आप मुझसे पूछेंगे तो AR glasses का future बहुत ज़्यादा तगड़ा रहेगा, because AR glasses are something which are very much handy. They are very handy to use to any user. That's one thing. And जब उसमें AI का when AI will blend with it, it will become more personalized, emotional. आप मान लीजिए कि आप घर में 5 लोग हैं. After some time you will have a 6th person with you. That's going to be AI. आपका एक पर्सनल टच रहेगा जो कि आपको कभी फील करने नहीं देगा कि आप अकेले हैं. Till an extent, जो आज से एस्टिमेट किया जा रहा है, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, you gonna have your own persona with yourself. कि you are emotionally, और आप कुछ थके हुए, you know, you want to convey your things with someone. That becomes your go-to.
समझ रहे हो? तो आपको वो चीजें मिलेंगी that will be more personalized. XR plus AI is going to be totally the future if you ask me. AR glasses and artificial intelligence. And in terms of like valuation, And right now check valuation से आप concerned है तो right now XR का जो valuation right now estimate क्या था? Right now the XR market value was for 2025 was predicted around 250 billion dollars US dollars, and by 2032 it is estimated that the XR market gonna hit 1.7 trillion dollars at a growth rate of 30 to 32% CAGR. तो इस रेट से एक्सआर का ग्रोथ होने वाला है इन दिस कमिंग इयर्स. कितना हो गया? 5-7-8 साल का टाइम मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट. सो इट इज so there is a huge market. इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट्स एन इमर्जिंग मार्केट. क्योंकि दैट्स इफ यू आस्क मी द फ्यूचर ऑफ एक्सआर. Emerging market in the sense like, can you give any of the example that we can target any of the market like that? सी इमर्जिंग मार्केट इफ यू जस्ट आस्क मी तो इमर्जिंग मार्केट इसलिए है क्योंकि ना जो ब्रांड्स पहले से एस्टैब्लिश थी, मेटा, गूगल, एडिडास, नाइकी, नाम लेते चाहिए, इन सब ने अपना मार्केटिंग कैंपेन्स, अपने प्रोडक्ट्स को दे हैड लॉन्च्ड फॉर टीवीज, बिग स्क्रीन्स, phones. So they had launched that for all of this utilities. But XR is coming as a new window via you can see the new world. तो आपको उस जगह पे अपने आप को पोजीशन करना है. when you hear metaverse and all those technologies, metaverse सुनते हैं, metaverse है, ये है, तो that's nothing but this new space which you're gonna have. तो वहाँ पे इन इंडस्ट्री लीडर्स को they have to position themselves over there as well. Plus जो new faces are industry के अंदर, they have to like they are directly coming on this XR space. तो funds बहुत आते जा रहे हैं, startups आ रहे हैं enhance करने के लिए. What I feel right now, there is lot to do in XR. So you have to keep shaping yourself because XR is not still formed. There is lot of space there to form the XR. क्योंकि extended reality term ही इतनी अच्छी बात है, it's an umbrella term कि आप उसमें बहुत सी चीजें कवर करते रहे. प्लस आपने रिसेंटली चेक किया रहेगा जब एप्पल के सीईओ ने लाइक एप्पल लाइक ही हैड टोल्ड कि जब उन्होंने एप्पल विजन प्रो लॉन्च किया था, सो दैट टाइम ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एप्पल विजन प्रो एज एन स्पेशल कंप्यूटिंग हेडसेट, नॉट एन एक्सआर हेडसेट. तो ही हैड डिफाइंड अ कंप्लीटली न्यू टर्म टू द इंडस्ट्री कि दिस इज स्पेशल कंप्यूटिंग, SPATIAL, स्पेशल कंप्यूटिंग. ही हैड बॉट दैट एंगल to the space. But end of the day extended reality है वो भी एक mixed reality headset है. You can see what you have a pass through in that as well. But thing है कि Apple Vision Pro is very good headset. Luckily Apple Vision Pro performance wise right now is the best headset in the standalone space. Standalone market में Vision Pro is the best because it has got 2 CPUs into that. 2 प्रोसेसिंग यूनिट उसके अंदर हैं, एक M2 है और एक उसका चिप है. So it has got a dedicated 2 double engine power in that, you can say sort of. और उसके विजुअल्स ऑलरेडी अच्छे हैं. एप्पल का डिस्प्ले जानते ही हैं, बेंचमार्क. और तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स होते जा रहे हैं धीरे धीरे, मार्केट में पैसा आ जा रहा है. इन्वेस्टर्स जितने भी हैं बड़े बड़े, ऑल ऑफ देम आर कमिंग इनटू एक्सआर स्पेस, दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इनटू दैट. So it's a big space. Plus what I feel personally right now I'm working on a mental health project. We are working on a mental health project, mental health plus AI, personalized AI project that's going to be mainly in XR space. So wherein you could experience mental peace, because आज के टाइम पे अर्बन सिटीज में जैसे बॉम्बे हो गया आपका, इस सब सिटीज में you have a lot of tasks, फास्ट मूविंग है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आते हैं. So as to encounter that you can experience that you can say calm verse sort of. आप एक काम स्पेस में आ जाएंगे wherein you can feel the calmness, एक virtual space में आप रहेंगे, you can experience that. Plus in that you're gonna have your custom, in that you're gonna have your personalized AI. Important ये है personalized AI का बोलने का, the reason being emphasizing on this personal AI is कि that gonna bring the emotional factor. We are trying to keep that AI bot in the XR mental space highly personalized. ताकि उसको आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट है, आप क्या करते हैं, आपका what are your daily habits, your daily workflow and everything. So that is something which will also come in the future as well. So it's a big picture in short. It's like it's a समुंदर, जहाँ पे भी आप जाओ जितना उठा लो और जितना आप घुस सको उसके अंदर, चीज ऐसी है. उसी में एक क्वेश्चन और है कि if any student wants to start their wealth generation, means if they want to start earning in terms of the projects and all, so from they have to start the things, कहाँ से उनको start करना चाहिए, okay, और वो कितना कमा सकते हैं? See, if you
like if you start in this space, अब जब XR में आएंगे, so you have to first learn the things. You will first learn the basics of XR. You will first learn game engines. You will get hands on with that. आप गेम इंजन समझेंगे कैसे गेम इंजन काम करते हैं. यू विल हैव योर ओन प्रोजेक्ट्स करके यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस के बाद में यू कैन स्टार्ट योरसेल्फ एज एन इंटर्न, एज अ डेवलपर. मेनली आप स्टार्ट एज एन इंटर्न ही करेंगे, क्योंकि आप इंटर्न जाके यू टू फर्स्ट सी कि हाउ इज इंडस्ट्री एक्चुअली वर्किंग. जो मैं सीख के आऊँ दैट्स परफेक्टली फाइन. आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन मी कि ये सब चीज़ें मैं करके आऊँ, बट इंडस्ट्री क्या चल रही है, हाउ इज इंडस्ट्री वर्किंग राइट नाउ, सो आपको समझना है. सो द बेस्ट spot to be at that time is while being an intern. So जब आप intern बन के जाएंगे, you will see the things कि okay, जहाँ पे lead developers, wherein the lead developers are working and how they are working, उनका process क्या है, क्या क्या चीजें कर रहे हैं ये. After that you will gain some experience from there. You will learn things. आपको चीजें और समझ में आएंगी. You will learn more techniques to deliver the outcome more efficiently. So ये करके you can start being an intern. Intern so you can become a developer. So once you become a developer from intern, it means कि आप इस टाइम पे ready हैं to contribute such that कि that makes revenue. तो इस टाइम पे you can start working as a developer full time, or you can even start doing freelancing as well. तो generally usually if you are well versed with the technology, अगर आप चीज़ें थोड़ी बहुत सीख चुके हैं, अगर आपको पता है XR में चीज़ें कैसी हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने हैंड ऑन ले लिया, अपना प्रैक्टिकल कर लिया, so you can start somewhere around 15-20K as an intern at the time being, as high as 30-40K being an intern. Once you get into development, you can start somewhere between 40-50 range से start कर सकते हैं, and there is no upper ceiling to that. You can make up till around 1.5, 1.6, 1.7 as well. क्योंकि 1.5 का आप लिमिट डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे, आपको उसके अंदर बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी. आप उसमें फुल टाइम जॉब भी करेंगे, आप फ्रीलांसिंग भी करेंगे, आप प्रोजेक्ट्स भी लेंगे. प्रोजेक्ट्स लेके आप 4 लोगों को बांट देंगे. यू विल लीड अ प्रोजेक्ट. आप फुल टाइम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग रेवेन्यू फॉर हिम. सो इन दैट इट्स लाइक कि आपको हर जगह टाइम देना पड़ेगा. आप 8 घंटे 10 घंटे यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ फुल टाइम जॉब, फिर आप रात को जाके आप ये करिए, फिर आप टाइम दीजिए. क्योंकि ये ऐसा पार्ट है ना कि आपको ये 3 साल 4 साल घिस देंगे इस चीज पे, देन यू पुट अ गुड फाउंडेशन विद योरसेल्फ व्हिच यू आर बिल्डिंग. सो आपका यही एक आइडियल रेंज रहेगा गिवन दैट यू वर्क दिस मच. Very good. And the next thing is that you also know actions speak louder than word. So in terms of action, what is like what kind of a project that you have done, or if you want to share any of the good projects that you have done in industry? Sir, as we started, so I have worked for various industries. Right now I'm mainly working for aviation, we can say advertisement, marketing, industrial utilities. So recently, very recent, like almost 1 साल हो गया रहेगा. So I had built an mixed reality multiplayer experience. In that basically it was made for aviation utility, for the students and the aviation folks. So in that you could have an engine in your mixed reality space wherein you could assemble the engine, disassemble the engine in mixed reality real time में. So you have got multiplayer as well. तो 4 लोग VR पहन सकते हैं. Like you could wear your headset, I can wear mine, they can wear theirs. But thing इसके अंदर आप कोई भी headset पहन लीजिए. You can wear your Oculus, I can wear my HTC Vive, he can wear their, like they can wear their headset, whatever they have. So all of them can come into come in a common space, sharing space, like a multiplayer setup, and they can see the engine, they can dismantle the engine, they can see what exactly engine के अंदर क्या क्या चीजें हैं. Detailed कहते हैं ना, multiplayer experience था उसके अंदर. And apart from this, I had worked for like real estate as well, RPC इसको हम कहते हैं. So I have met several virtual tours, 360 degree के mapping हम कर करके I have created many VR walkthroughs in this. Plus I have made various AR applications as well, augmented reality applications for real estate, जहाँ पे you can see your pre-visualization of the buildings as well, जबकि projects आने वाले हैं. So you could visualize them into augmented reality, and उसका वर्चुअल वॉक थ्रू मिल जाएगा आपको. एंड राइट नाउ वी हैव गॉन लाइक एज मिक्स्ड रियलिटी स्केलिंग अलॉट, तो हम उसमें मिक्स्ड रियलिटी में चीज़ें कर रहे हैं. बेसिकली यू कैन सी द प्रोजेक्ट बिफोर बिल्डिंग में. बट अब तक का सबसे मेरा बिगेस्ट हाईलाइट जो था ना, लाइक यू कैन से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट इन एनी ऑफ द एक्सआर डेवलपर लाइफ. मतलब आधे को ये मौका मिलता है, आधे को मिलता भी नहीं. लाइक यू कैन से मेजॉरिटी वोंट गेट दिस चांस. सो आई हैड अ चांस टू वर्क विद केव. दैट इज योर केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप. It's a 4-sided setup. In this you have got 4 projectors, 4 walls, and you have this immersive XR space wherein you can wear 3D glasses, and as you can see that you can
you can experience that virtual content in that with highest emotion you can sort of. तो उसके लिए भी as a developer work करना was a great chance to me as well, because उसमें content देखना is a luxury. आपको you feel हाँ मजा आ रहा है, but when you go on the backstage to create a content, it's a big thing, because in cave you have got like 3 to 4 things to consider. आपके पास में cave में एक cave का plugin है, cave का SDK है, then you have to communicate with the 3D glasses, then you have to communicate with the trackers, जबकि इसमें tracking लगी हुई है to track your positions, your head positions, आपके rotations को target करने के लिए. So in cave when I was working as a developer, as a Unity developer, I had to like deal with these 3-4 things. तो उनके interfaces बने हुए थे, but I had to derive from the interfaces. तो अपने को एक अपना custom implementation लिखना पड़ता था. So that is something which was very unique, and that's one of the most unique element which I'm gonna have in my life throughout, because K was something is in that bucket list. वो एक elite हो गया, because आजकल headset पे सब काम कर लेंगे, VR से deploy कर लेंगे, but K के लिए deploy करना was one of the biggest learning asset and biggest experience for me. So that was one of the biggest project for me as well, क्योंकि उसके अंदर development के अंदर भी if you see I just I took almost 8 to 10 months just to get familiar with that, क्योंकि उसके अंदर it is not just your interaction और headset पहन लिया सब चीज़ हो चुकी है, इसके अंदर ये पर many things in detail. उसके अंदर 3-4 components है SDK के भी, आपको उसके अंदर लुक आउट करना है. और इम्पोर्टेंटली है कि केव इज समथिंग नॉट विच इज देयर एवरीवेयर, इट इज वेरी रेयर. आई गेस वन वी हैव इन कांदिवली एट विघ्नेश एंसियन विघ्नोटेक जो हमारा मेन है, and one I guess we have at IIT Delhi and at IIT Bombay and other regions. Not certain about the location, but yeah, it's very rare comparatively. So उसके लिए आपको काम करना भी बहुत बड़ा opportunity है to create content for that and create the plugin for that. सबसे बड़ा चीज़ कि उसको चलाने के लिए और making a driver, that is something, at least interface for that driver, that's a big chance to have. And mainly और हमने चीज़ें की हुई, like I have made lot of projects. इसके अलावा if you ask me केव के लिए किए हुए हैं, इसके लिए किया हुआ है, वर्चुअल वॉक थ्रूज किए हमने, और हमने ट्रेनिंग्स कुछ होते हैं, जैसे कि एक सिलिकॉन वेफर हम रिप्लेस करने, एक बेसिकली इंडस्ट्रियल जो भी आप कह रहते हैं, एक स्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेनिंग की अपने सिमुलेशन, द करेक्ट सिमुलेशन बनाए बहुत सारे हमने अक्रॉस इंडस्ट्रीज. सो मेनली और भी चीज़ें की हैं, लाइक सो इट्स लाइक समथिंग नॉट आई डोंट हैव एग्जैक्टली रिटन बट आई हैव गॉट ऑल दिस इन माय पोर्टफोलियो. किसको चाहिए दे कैन जस्ट कम एंड हैव अ वर्ड विद बहुत कुछ. और अभी भी व्हाट आई फील अभी भी इसकी आई हैव डन लेस. सो मतलब ऐसा मेरा चलता है कि अभी भी बहुत कुछ करना है. Learning is like life should continue with the learning only, right? One last question, okay? We met in the workshop, correct? I have we have conducted the workshop in your college. So वो workshop कैसे आपके लिए helpful था? क्या trigger point किया जिससे आप थोड़ा बहुत तो हमने आपकी life में changes कर पाया? According to that, see, first of all, it was like it was a great. First of all, the workshop was great to be the point, and it was a good one to be there part of. Like it was something which gave value to me, to my life. First of all, कि चीज ठीक है, I got introduced to this door. कि ये डोर है, ये डोमेन है, दिस इज एक्सप्रेस वे. आप उसमें चढ़िए, अपनी गाड़ी डालिए, प्रैक्टिस कीजिए, चलते जाइए, इसमें लंबा रास्ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट द इंट्रोडक्शन टू दैट होल डोमेन क्या है, मतलब एक इन डेप्थ में. बाकी फिर तो इट वाज जस्ट पुटिंग माई सेल्फ बिहाइंड द एक्सीलेटर, पंजा मार के आई हैव टू बी ऑन दैट, बिकॉज रोज सीखना था. यू लाइक from that day till today it's about just learning. I think students want that only, right? They want only the trigger point and the rest of the thing done by them only. Correct. Trigger point चाहिए फिर, and second thing is trigger point that's basically you have acknowledged yourself कि मैं इससे align करता हूँ. Second thing is consistency. उसको लंबी पीरियड पे करना भी है. अभी आपने एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, but you have to make sure that it becomes part of your life. At the time being, if some like I do, किसको बोलने की जरूरत नहीं है. If you ask me to work on extra 7 days, I will work 7 days. Okay. No pain, no gain, nothing. I will devote that time. So generally, like as a company, okay, our aim is also that like we need to start one of the institute like that, like where we are going to provide each and everything in the practical knowledge. So what is your take on that? If we are going to provide whatever thing that we are providing in the workshop and all, so if we want to provide those particular thing in the institute, so how it will be helpful for the student, like they are going to get the degree as accordingly whatever practical work they have completed in terms of the technology and all. So how it will work as from your perspective? जैसे आपने मेसा का नाम सुना होगा,
मास्टर यूनियन का नाम सुना होगा. They are providing the degree and all with their technology, but we just wanted to do like the replacement of the engineering colleges and all. See, XR में it's a specialization. You get into XR as a it's a specialization. Like you have got AI web development, तो ऐसा XR में space है. So if you have to start from university level, so we can bring a parallel course to your traditional courses. BTech computer science, augmented reality and virtual reality, or extended reality. Extended reality with artificial intelligence. This can be a nice bundled course. और bundled course, what I mean by this is, it is not just कि आपको उसका नाम रख दिया, be Bachelor of Engineering, Computer Science, Extended Reality and AI, बस इतना ये करके नहीं रुकना आपको. That's your first step. उसके बाद में as an institute we have to make sure that we are able to arrange that expertise at our place. क्योंकि नाम रखने से आप you cannot literally give that. You have to also give the value to the students. जो देख के आ रहा है एक्सटेंडेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू हैव टू मेक श्योर जब 4th ईयर पास आउट करेगा सिंसियरली तो उसके पास वैल्यूज रहनी चाहिए. खाली A4 साइज पे डिग्री नहीं काम चलेगी उस टाइम, या फिर लेटर साइज पे. सो फॉर दैट यू हैव टू ब्रिंग दैट एक्सपर्टीज. सो द इंस्टीट्यूट्स कैन collaborate with us, like people like us who can partnership and give them some expertise, our bring our expertise to the students. कि टेक्नोलॉजी क्या है, what challenges we have faced, इसमें चीजें करते हैं कैसे, इसका फ्यूचर क्या है ना, ऑल द स्टफ्स वी कैन कम एज अ कोलैबोरेशन एंड वी कैन हेल्प इंस्टीट्यूट्स. सो वी कैन फॉर्म अ बॉडी एज वेल collectively and we can bring that expertise to the institutes. Or we can have a standalone courses as well जहाँ पे we are teaching XR. Because मैं as a developer भी बहुत सारे cohorts में XR meets में जाते रहता हूँ. Like recently we had this waves at BKC, so I was also there. Our team was there, our MD and everyone there were there, CEO sir and everyone was there at the waves as well. So we came across all of the ideas and everything. So luckily आज के time पे XR is still comparatively untapped when you compare with the web development and AI. जो उसका ratio है वो आज भी उतने ratio पे touch नहीं किया मैं. So there is a lot of space left to work in this. That's what I can say, and it's a good one. Yes. And it is just like last time if तुमको पूछेंगे closing line में, so it would be just कि we got to be hunters. Okay. We got to explore. We have to see opportunities. We have to see opportunities where others see that as limit. क्योंकि उधर ही पैसा है. पैसा उधर ही है, learning भी उधर ही है. That's the point where you will learn. And that's it. Just start, come, learn, practice, do it, deliver. Learn, practice, deliver. That's how it should be. So thank you so much. Thanks. Nice to meet you. And personally I have learned very much. And like you have come over here, and initially when we have met with you as a student, but now as a tech lead, okay, so like that kind of a changes, like personally I can feel that ki whatever you have done, okay, there is lot many things that I can learn from you. And so do I, sir. And I today also, like in this particular podcast, I learned lot many things that I can implement for my student, whatever things that we are going to conduct in terms of the workshop and all. Thank you so much for your great, really appreciate it, sir, for your great experience and all. Okay, and and if you want to add something, then you can add it. It's simple, man. See, I just have a single motto of the day: learn, practice and deliver. Learn, deliver. Sikho and just deliver that. That's how the chronology should be, and just to keep note of that. Yes. कि आप जाके लिख दो कहीं पे कि मैंने आज deliver किया हूँ, ऐसे deliver किया हूँ. That's it. बाकी आपको चीज़ iteration में कर देना, and just make sure कि you are on the path. Okay. कि जो आपने road map बनाया हुआ है, just make sure that आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं. बस बाकी फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना. That should be much more than enough. Yes. Thanks. Yes, thanks. Thanks, sir. Nice to meet you. We'll meet again. Definitely. Why not? And thanks for watching our podcast. A big thanks to our guest who shared the insightful knowledge about the XR industry. And if you found something helpful for you, then please do like, share and subscribe this particular channel, and please follow for the more information. And we will